آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض۔ سورۃ اعراف ہے اور آیت نمبر 96 ہے کہ کائنات کے لوگوں رب العالمین اگر اس بستی والوں پر کرم کر دیتا تو آسمان سے برکت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ اب برکت چیز کیا ہے؟ ہر کوئی انسان کسی کو دعا دینے کے لیے کہتا ہے بارک اللہ، اللہ تجھے برکت عطا کرے، بارک اللہ، اللہ تجھے برکت عطا کرے، اور یہ دعا دینی بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو یہ دعا دیا کرتے تھے اور تلقین بھی کیا کرتے تھے، اللہ سے برکت کا سوال کیا کرو۔ جب برکت نازل ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، جب برکت نازل ہو جاتی ہے تو پھر مال کی کثرت کو شمار نہیں کیا جاتا، پھر اللہ کی اس مال کے اندر برکت کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، چاہے مال کم ہو۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے جب یہ قرآن پڑھ کے سنایا اور قرآن کے اندر لفظ برکہ بہت مرتبہ آیا ہے، امام راغب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا آ جانا اس کو برکت کہتے ہیں۔ امام قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر زیادتی کا ہو جانا، بڑھوتری کا ہو جانا، اضافے کا ہو جانا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ سورۃ صافات ہے اور اس بات کا اعلان ہے، آیت نمبر 113 ہے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ رب العالمین کا قرآن وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب کہ ان کی نسل میں برکت آئی، ان کی نسل کے اندر پیغمبر آ گئے، ان کی نسل کے اندر نبی پیدا ہوئے، ان کی نسل کے اندر اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ان کی نسل کے اندر لوگوں کو واعظ تبلیغ کرنے والے افراد پیدا ہوئے، ان کی نسل کے اندر اللہ کی طرف بلانے والے پیدا ہوئے، ان کی نسل کے اندر قرآن کی طرف اور اسی طرح جنت کا پیغام سنانے کے لیے پیدا ہوئے، ان کی نسل کے اندر اللہ کے خوف سے ڈرانے کے لیے لوگ پیدا ہوئے، ان کی نسل کے اندر جہنم سے ڈرانے کے لیے افراد پیدا ہوئے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اس کو کہتے ہیں اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں برکت کو رکھ دیا۔ حضرت اسحاق کی لڑی میں سے بے شمار انبیاء اکرام پیدا ہوئے اور آپ کے دوسرے لختے جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی لڑی سے ایک ایسا پیغمبر پیدا ہوا جو سارے پیغمبروں کا سردار بن گیا، جو ساری امت کا امام بن گیا، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وذریاتہ وسلم کی ذات۔ حضرت سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے 144 نمبر، وَبَارِكْ فِيمَا آتَيْتَ، رب العالمین کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا اللہ مجھے برکت عطا فرما، جو مجھے عطا فرمایا ہے اس میں بھی برکت عطا فرما۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ میری بیوی بچے کاروبار میرے اہل و عیال میں برکت پیدا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برکت کا سوال کیا ہے، وَبَارِكْ فِيمَا آتَيْتَ، یا اللہ تو نے جو مجھے عطا فرمایا ہے اس کے اندر برکت عطا فرما دے۔ حضرت امام ابن اسیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کو نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کا دوسرا حصہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ برکت
नाज़िल फरमा। सय्यिदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व अला आल मोहम्मद, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर भी बरकत को नाज़िल फरमा। कमा जिस तरह सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बरकत को नाज़िल फरमाया और उनकी आल के अंदर आपने बरकत को रख दिया। ये जो बरकत का सवाल है, फरमाया इसके मुतल्लिक ये इज्जत का नाम है, ये शर्फ का नाम है। जिस तरह हजरत इब्राहीम के बारे में हर एक इंसान कहता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो किसी मजहब का तल्लुक रखने वाला, हजरत इब्राहीम को वो मानता है। कहता हजरत इब्राहीम हमारे नबी थे, मुसलमान कहते हमारे नबी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अजदाद में से आए हैं। सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नदी से बेशुमार अंबिया इकराम पैदा हुए। हर कोई कहता है हजरत इब्राहीम हमारे पैगंबर हैं। या अल्लाह, इस तरह ये हमारे पैगंबर सय्यदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारी कायनात के लिए पैगंबर बनकर आए हैं। या अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दे। ये सारे के सारे लोग बोले सय्यदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ईसाई भी पुकारे, यहूदी भी पुकारे, मुसलमान तो पुकार रहा है, मुसलमान दिफा भी कर रहा है। फरमाया इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं इसका मुराद, इससे मुराद ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद आज कितनी सदियां गुजर चुकी हैं, लोग आज भी उन पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। इसी तरह ये जो ज़ात इज्जत शर्फ की बात है, ये हमेशा हमेशा के लिए है। या अल्लाह, इसी तरह पैगंबर आज़म को हमेशा के लिए इज्जत अता फरमा दे, हमेशा के लिए शान अता फरमा दे, उनकी आल को इज्जत अता फरमा दे, उनकी आल को शान अता फरमा दे। जो उनकी इज्जत के कम करने की जो बात करता है, या अल्लाह उसको फना कर दे। जो उनकी आल की इज्जत को कम करने के लिए बात करता है, या अल्लाह उसको ज़लील व ख़ार कर दे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए बरकत अता फरमा, हमेशा के लिए इज्जत अता फरमा, हमेशा के लिए शान रुतबे अता फरमा। क्योंकि मकाम महमूद अता होना है, आका को मिलना है, आका ने जन्नत के दरवाजे को खोलना है, आका ने हौज़े कौसर को अता करना है, आका ने इंसानों के लिए अपनी उम्मत के लिए शिफात करनी है, मकाम महमूद को अल्लाह ने अता करना है। ये सारे के सारे जो मामलात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतालिक है। हज़रत रब्बुल आलमीन का कुरान है और इस बात का ऐलान है कि अंबिया किराम भी बरकत का सवाल करते रहे, औलिया किराम भी बरकत का सवाल करते रहे, सुलहा भी बरकत का सवाल करते रहे, अतकिया भी बरकत का सवाल करते रहे। सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हैं। वो फरमाते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं तो देखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर मौजूद नहीं। दरवाजे पर दस्तक दे तो बहू आती है। फरमाया कि आपके खाम सैयदना इस्माइल कहाँ है? फरमाया वो शिकार पर गए हैं। कहा कि आपका खाना पीना कैसे है? कहा कि हम गोश्त को खाते हैं और पानी को पीते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह इनके रिज़्क़ के अंदर बरकत को पैदा फरमा दे। जब इंसान अपनी औलाद को देखे कि इनके घर में अच्छा चल रहा है, अच्छा खा पी रहे हैं, फरमाया कि औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, ये सदा सलामत रहे, इनके घर में बरकत आती रहे, इनके माल के अंदर अल्लाह बरकत को पैदा कर दे, ये खाते पीते रहे। अल्लाह फरमाया सही मुस्लिम के अंदर 1373 नंबर रवायत है। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नया फल आता, हर साल का नया फल आता है ना, उसके अव्वल दिनों के
के अंदर उसके पहले हफ्ते के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम खुशी के साथ लेकर आते, आका ये नया फल नोश फरमाइएगा, आका हमारे बाग से ये नया फल उतरा है, हमने ये मुनासिब समझा, ये तोहफे के तौर पर हम आका को देते हैं, आका हमारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल अपने हाथों को उठा लेते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक फी समरिना, अल्लाहुम्मा बारिक फी समरिना व बारिक लना फी मदीनतिना व बारिक लना फी साइना व बारिक लना फी मुद्दिना। या अल्लाह इस समर के अंदर, इस फल के अंदर बरकत को नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह जो फल मेरे सामने आया है ये साल का नया फल है, जब हम इस किसी फल को देखें, ये अंगूर आ रहा है, ये केला आ रहा है, ये आम आ रहा है, हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक फी समरिना, या अल्लाह इस फल के अंदर बरकत को नाज़िल फरमा दे। बरकत से मुराद ये कि हमारे रहने वाला हर एक इंसान हर एक बाजी से खा ले, इसकी कीमत भी मुनासिब हो और इसका फल भी वाफर हो जाए, हर एक गरीब के लिए ये माल वाफर पहुंच चुके जाए। फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना, या अल्लाह इस फल के अंदर बरकत को नाज़िल फरमा दे। व बारिक लना फी मदीनतिना, या अल्लाह हमारे शहर के अंदर बरकत को नाज़िल फरमा दे। ये ऐसा ना हो फल तो बड़ा ज्यादा हो लेकिन शाहिद ना रहे, ये जो आफत आ जाए, सलाब आ जाए, अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाए, ये ऐसा ना हो कि हमारा शहर फना हो जाए। या अल्लाह हमारे शहर को भी सलामत रखना, इस फल के अंदर भी बरकत को नाज़िल फरमाना और इसके वजन के अंदर भी बरकत को नाज़िल फरमाना। ये ना हो कि फल छोटा होना शुरू हो जाए, ये फल की पूरी मकदार हो, ये ना हो कि फल का ज़ायका खराब हो जाए। या अल्लाह इस फल का ज़ायका भी अच्छा हो, इसके ज़ायके के अंदर भी बरकत को नाज़िल फरमाना, इसके साइज के अंदर भी बरकत को नाज़िल फरमाना। और जिस शहर के अंदर इसने प्रमाण चढ़ा है, ये होगा है, या अल्लाह उस शहर को भी सलामत रखना ताकि हर साल ये फल आता रहे। या अल्लाह इस फल के भी अंदर बरकत को पैदा करना, ये वाफर फल हमें अता फरमाना। जब फल वाफर होगा फिर इसकी कीमत मुनासिब हो जाती है, जब फल वाफर होगा फिर हर गरीब तक पहुंच जाता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जो भी खाना पकाओ उसके अंदर गरीबों का हक रख लिया करो, अपने हमसायों का हक रख लिया करो। अगर खाना कम है तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो, शायद कि किसी गरीब को देने से आपके खाने के अंदर बरकत पैदा हो जाए। दरवाजे पर दस्तक हुई, अल्लाह के नाम पर मैं रोटी का सवाल करता हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। दरवाजे पर दस्तक हुई, ये बंदा कहता है मैं 5-10 रुपए की रोटी लेकर दरवाजे पर जाता हूँ, इस गरीब के दामन में देता हूँ, इसके कशकोर में देता हूँ। ये कहता है अल्लाह तुझे हज करवाए, अल्लाह तुझे उम्रा करवाए, अल्लाह तुझे नेक बना दे, अल्लाह तुझे बहुत सारा माल अता फरमा दे। कहा कि उसने मुझे लाखों की दुआ दी। हज करना लाखों का काम है, उम्रा करना लाखों का काम है, गरीबों मिस्कीनों में खर्च करना लाखों का काम है। फरमाया अल्लाह तेरे माल के अंदर बरकत को पैदा कर दे। मुझे उसने लाखों की दुआ दी। मैं अपने मन में सोचने लगा पता नहीं गरीब वो था कि मैं था, मैंने तो सिर्फ 10 रुपए की रोटी दी, उसने मुझे लाखों की दवा दे दी। हज़रत ये है जुबान से जो निकली हुई दुआ रब के पास बहुत अहमियत रखती है। लोगों से दुआ लेनी चाहिए। किसी को इंसान कहे या अल्लाह ऐ इंसान मेरे लिए बरकत की दुआ कर। जब इंसान किसी के लिए बरकत की दुआ करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने इंसान मुसलमान के दिल के अंदर उसकी इज्जत शान को देखकर, उसके माल को देखकर, उसकी जायदाद को देखकर, उसके वकार को देखकर तेरे दिल के अंदर हसद ना आए। ये ना हो कि इसके पास क्यों आ गया, इसे गरीब बल देख के ना हंसे आकर, न बुरी नजर न लगता किया कर, लोगों दे ऐद लगने पते आपके दे अपने अंदर भी देख के आकर, भुलना दा तू अतर बना, अतरा दा फिर तू कद दरिया, दरिया विच फिर रज के नाम, मछियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बोली मुकनी पहले अपनी मैं मुका।
जरा जुबारियां होते एक उस्ताद शगिर्द हजारां बैठे रहते रहे इल्म दे लारियां होते और सबक सिख पतंगा तो चाहत दा साडे जड़े शमा दे लश्कारे होते कदूसी ओना नु जन्नत लादी अमल करते ने जो नबी दे इशारे होते अल्लाह ने इंसानों के लिए मोहब्बत को पैदा करना अपने